पुट इन करनी है which is 4.5 और आपका आंसर आ जाएगा जी -8. Part B, given also that y plus z ratio t is equal to 4:15, find the value of t. अच्छा, अब हम लोगों ने सिंपली ये जो इंस्ट्रक्शन हमें गिवन है इसको फॉलो करनी है, सही है। जो पहला ब्रैकेट है जिसमें y और z ऐड हो रहे हैं आपस में, तो उनकी जगह हमने उनकी ओरिजिनल वैल्यूज जो हमें गिवन है वो पुट इन करनी है। तो ये आपका हो जाएगा y is 1.5 प्लस z is 4.5 ratio t is equal to 4:15. So 1.5 plus 4.5 will give us 6. 6 ratio t is equal to 4:15. और ये जो रेशो का साइन होता है, इस रेशो के साइन को हम ऐसे डिवाइड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 6 divided by t is equal to 4 divided by 15. And now we simply have to cross multiply. 15 will be multiplied by 6 and t will be multiplied by 4. तो ये आपका हो जाएगा 6 times 15 is equal to 4t. And your answer would be 90 is equal to 4t and t is equal to 90 divided by 4. और आपका आंसर आ जाएगा जी 2 times 2, 2 times 45, 2 times 1, 2 times 22.5. Question number 2. The number of hours worked each day by Adam and Brenda is shown in the table. The number of hours for which they are paid is calculated in the following way. On each of the days 1 to 5, from day 1 to day 5, every hour worked after the first 7 hours is counted as 1.5 hours. यानी कि अगर 7 घंटे से आगे एक्सीड करने वाले जितने भी आवर्स होंगे, वो अगर फॉर एग्जांपल 8 आवर्स उसने काम किया है तो 7 आवर्स उसके कंप्लीट काउंट होंगे और उसके अलावा जो एक एक्स्ट्रा 1 आवर काउंट किया वो 1.5 के इक्वल काउंट होगा। तो ऑन डे 6 एवरी आवर वर्क इज काउंटेड एज 2 आवर्स, यानी कि ऑन डे 6 उसने जितना भी काम किया होगा, जितने भी आवर्स, दैट विल बी काउंटेड एज 2, डबल हो जाएगा। Calculate the total number of hours for which Adam was paid. So we have to find out the time कि Adam ने कितने number of hours काम किया। तो day 1 he worked for 7 hours, 7 will be counted as it is. On day 2 he worked for 5 hours, 5 भी as it is count हो जाएगा। On day 3 he worked for 8 hours, 8 में से 7 as it is count होगा plus 1.5 extra count होगा instead of 1. प्लस 9 का मतलब 7 एज इट इज काउंट होगा और जो एक्स्ट्रा 2 आवर्स है वो मल्टीप्लाई होंगे विद 1.5, सही है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 3 एंड देन प्लस 8 आवर्स अगेन व्हिच मींस 7 कंप्लीट प्लस 1.5 एक्स्ट्रा, ठीक है। नाउ लेट्स ऐड देम अप। 7 plus 5 is 12, 12 plus 7 is 19, 19 plus 1.5 is 20.5, 20.5 plus 7 plus 2 times 1.5 is 3 and then again plus 7 and then plus 1.5, इनको ऐड करते हैं। अच्छा 7 plus 3 आपका 10 हो गया, 10 plus 7 आपका 17 हो गया। अच्छा 20.5 और 1.5 आपका हो गया इक्वल टू 22, तो 22 plus 17 is equal to 39. So he worked for 39 hours in the week. Adam. Part B. The rate of pay is $14.5 per hour. How much did Brenda earn on day 6? So she worked for 5 hours on day 6, which means that each hour is counted as 2. So 5 hours का मतलब she worked for 10 hours, उसको 10 hours की पे मिलेगी, and per hour जो payment है that is 14.5. So 10 times 14.5 will give us the answer which is equal to $145. Let's move on to the next question. Question number 3. Question number 3, part A is a basic subtraction of two fractions, two mixed fractions. So we'll have to convert this mixed fraction into an improper fraction first. So ये 5 हो जाएगा, 5 times 3 is 15, 15 plus 1 is 16. 16 divided by 5 minus 4 times 2 is 8, 8 plus 3 is 11, 11 divided by 4. तो आपने अब क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो उसका करने का सिंपल तरीका है, आपने डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 20 आ जाएगा आंसर। लेफ्ट वाले को आपने राइट वाले डिनोमिनेटर से और राइट वाले को आपने लेफ्ट वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 16 times 4 minus 11 times 5 और आपका आंसर आ जाएगा जी 64 minus 55 divided by 20 and your final answer would be 9/20, which cannot be further simplified. Part B. 2/3 of a plot of land is garden. 1/5 of the garden is lawn.
फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड विच इज लॉन। ठीक है, सवाल आपका ये है कि एक प्लॉट है, उस प्लॉट के अगर तीन हिस्से किए जाएं, लेट सपोज ये हमारा एक प्लॉट है और इस प्लॉट के हमने एक, दो और तीन हिस्से किए हैं। इस तीन में से 2/3 यानी कि 2/3 ऑफ दिस प्लॉट जो है ना वो गार्डन है, यानी कि ये सारा आपका एक हिस्सा पूरा, ये दूसरा हिस्सा पूरा, ये हमारा गार्डन है। ठीक है, एंड 1/5 ऑफ द गार्डन इज लॉन। और ये जो दो हिस्से हैं, इन दो हिस्सों के अगर फर्दर 5 मोर, पांच और हिस्से किए जाएं, तो उनमें से एक हिस्सा जो है वो आपका है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग लॉन। तो वो ये कह रहे हैं कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड विच इज लॉन। ठीक है, यानी कि 1/5 ऑफ द गार्डन इज लॉन, यानी कि 1/5 ऑफ द गार्डन। And what is garden equal to? Garden is equal to 2/3 of the land, complete land. So 1/5 times 2/3 is equal to 2/15. So the answer for this part is 2/15. ठीक है, यानी कि पूरे लैंड का जो है वो 2/15 हिस्सा इज लॉन। पार्ट क्वेश्चन नंबर 4। किसी को भी किसी सवाल में कंफ्यूजन होगी, आपने उसी वक्त हैंड रेज करना है या आपने अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, तो जो भी किसी का भी सवाल हो आपने मुझसे उसी वक्त पूछना है। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक जो है वो फ्यूल का एक हमें गेज नजर आ रहा है। ठीक है, और उसमें हमें जो है वो स्केल नजर आ रहा है। उस स्केल के हिसाब से हमें सर्टेन वैल्यूज फाइंड आउट। व्हाट फ्रैक्शन डज द गेज शो, यानी कि आपका जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज 0 टिल हियर इट्स 1/4 टिल हियर इज 1/2, एंड द फ्रैक्शन, द एरो इज एग्जैक्टली इन बिटवीन 1/4 एंड 1/2। तो 1/4 as a decimal is 0.25 and 1/2 as a decimal is 0.5, and the value exactly in between both of them would be equal to, इनको ऐड करें और इनको 2 से डिवाइड कर दें, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा जी 0.75 डिवाइडेड बाय 2 which is equal to 0.375, and we have to give this value as a fraction। तो ये हो जाएगा आपका 375 डिवाइडेड बाय 1000। इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा जी यहाँ 200। यहाँ पे आ जाएगा 5 टाइम्स 7 इज 35, 2 बच गया, 5 टाइम्स 5 इज 25, 5 into 40, 5 into 15, 5 into 3, 5 into 8। So your answer for part A is 3/8। ठीक है, इसका एक और हल भी होता है कि मैंने हम लोग को पहले भी बताया था कि जब भी आपने किसी भी दो फ्रैक्शंस का एक मिडिल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता है, तो आप सिंपली इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि वी कैन आल्सो डू 1/4 plus 1/2 divided by 2 after that। So let's add both the fractions first, 1/4 plus 1/2, और both the denominators are different, तो आप क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का मतलब 4 टाइम्स 2 8 हो जाएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला जो 1 है ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 6/8। एंड देन यू हैव टू डिवाइड दिस फ्रैक्शन बाय 2 ताकि हमें हाफ वे मिले। तो डिवाइड बाय 2 का मतलब है आपका आंसर बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाय आपका 16, एंड देन वील डिवाइड दिस फ्रैक्शन बाय 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स 3 इज 6 एंड 2 टाइम्स 8 इज 16। तो ये आपका फ्रैक्शन 3/8 आ रहा है। मूविंग ऑन टू पार्ट बी। द फ्यूल टैंक होल्ड्स 48 लीटर्स व्हेन इट इज फुल, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 48 लीटर्स को। ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स मस्ट बी एडेड टू फिल द टैंक, और टैंक फिल करने के लिए अभी इस वक्त जो है वो आपका टैंक का जो एरो है दैट इज ओवर हियर। ठीक है, हमने यहां से लेके यहां तक जो है वो फिल करना है, मतलब इतने नंबर ऑफ लीटर्स हमने पेट्रोल इसमें ऐड करना है टू फिल अप द टैंक। तो द स्टेप नंबर 1 इज टू फाइंड आउट द रिमेनिंग फ्रैक्शन। सही है, द फ्रैक्शन ऑफ फ्यूल टिल दिस एरो इज 3/8। टू फाइंड आउट द रिमेनिंग फ्रैक्शन, मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको जो फ्रैक्शन होता है दैट इज 1। सही है, तो अगर फुल को फुल इज रिप्रेजेंटेड बाय 1, एंड फुल में से हम जो ऑलरेडी फिल्ड अप फ्यूल है 3/8 अगर हम माइनस करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/8।
यानी कि वी हैव टू फिल अप 5/8 ऑफ द टोटल फ्यूल टू टू कंप्लीट द टैंक, यानी कि ताकि हमारा टैंक जो है वो फिल अप हो जाए। तो 5/8 हमने और फिल अप करना है। 5/8 किसका? 48 लीटर्स का। तो 8 1s are 8, 8 6 are 48, and 5 times 6 is equal to 30 liters, which means that you have to fill up 30 liters. The second way to solve this question is कि आप ये देखो कि ऑलरेडी फिल्ड अप कितना है, तो हमने उसका फ्रैक्शन निकाला था 3/8। तो 3/8 को लीटर्स में करने के लिए, क्योंकि कंप्लीट टैंक 48 है, तो 3/8 टाइम्स 48 हमें पता चल जाएगा कि 18 लीटर्स जो है वो इस वक्त ऑलरेडी फिल्ड अप है। तो 18 फिल्ड अप है, 48 तक जाना है, तो रिमेनिंग कितना फिल करना होगा? 30 लीटर्स फिल करना होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये हमने उस दिन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसका पहला वाला पार्ट। मेरे ख्याल है दिस वाज द लार्जेस्ट एंड दिस वाज द मीडियम एंड दिस वाज द स्मॉलेस्ट। पार्ट बी करते हैं आज। एन अमाउंट ऑफ मनी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन द रेशियो 1:4। फाइंड द स्मॉलर पार्ट एज अ परसेंटेज ऑफ द होल अमाउंट। स्मॉलर पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1, the whole amount is represented by 1 plus 4, 5. So 1 over 5, and as a percentage का मतलब है times 100. So your answer would be equal to 5 ones are 5. 5 into 2 is 10. Put a 0 with it. 20%. Any student with any kind of confusion can ask the question at any time. मैंने शुरू में क्लास के बताया था कि हमने आज मैराथन टाइप करना है। मैंने सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करनी है आप लोगों को जितने हो सके। तो बीच में किसी को किसी पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछते जाना। क्वेश्चन नंबर 6A, द नंबर 3002.05 कैन बी रिटन एज 3 times 10 to the power 3। तो इसका मतलब है कि उसने 3000 को रिप्रेजेंट कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, प्लस अब उसमें उसने 2 ऐड किया और 2 को उसने रिप्रेजेंट किया इस तरह, 2 times 10 to the power x। तो 2 को हमने रिप्रेजेंट करना है इस तरह, तो हमने 10 की पावर हमने ऐसी रखनी है कि इसकी जो वैल्यू है वो 2 बने। ठीक है, तो 2 को अगर हम 10 to the power 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करें 2 को 10 से, जिसका आंसर आएगा 20। तो हमारा ये 1 नहीं हो सकता, वी नीड जस्ट 2। एंड टू मेक इट 2, द ओनली ऑप्शन वी हैव इज टू make the power of 10 0. Any number to the power 0 is equal to 1, and 2 times 1 will be equal to 2। ठीक है, तो x is equal to 0। सेकेंडली आगे है 0.05, 5 into 10 to the power y is equal to 0.05। 0.05 का मतलब है डेसिमल एक दो प्लेसेस राइट जाएगा और आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा 5 into 10 की पावर -2। तो y आपका क्या बना? y आपका बन गया -2। So the value of x is 0 and the value of y is -2. 0 and -2. Part B, Part 1. A bank exchanged Japanese yen and Singaporean dollars at a rate of 66 yen is equal to $1. Calculate in yen the amount received for $200. Whenever you have an exchange rate question, बड़ा आसान होता है। आपने सिंपली जो आपको exchange rate given है, सबसे पहले आपने यहाँ से सवाल स्टार्ट करना है। 66 yen, make a line and then write down $1। सही है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? हमने फाइंड आउट करना है येन, और हमें गिवन है डॉलर्स। तो डॉलर्स के नीचे हम डॉलर्स लिख लेंगे जो गिवन है, और जो हमने निकालना है उसके नीचे हम एक्स लिख देंगे। ठीक है, इसे यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं। अब आपने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 200 को आपने 66 से मल्टीप्लाई कर देना है, और इज इक्वल टू एक्स को आपने 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 200 टाइम्स 66। तो 66 टाइम्स 2 is equal to 132, and we'll put two zeros with it. So we'll be receiving 13,200 yens in exchange for $200. Calculate in dollars the amount received for 33,000 yen. Again we'll use the same exchange rate। अब हमें येन गिवन है तो हम येन के नीचे 33,000 लिख देंगे, और हमें डॉलर्स निकालने तो हम डॉलर्स के नीचे जो है वो एक्स लिख देंगे। एंड अगेन we'll do the cross multiplication method and we'll find out the value of x। Question number 7। अच्छा, let's go through a quick attendance। Mishail, are you in the class? Yes, sir. Maria, Yes, sir. Hajra, अच्छा जी, हाजरा आपकी आवाज नहीं आई।
Question number 7, the rate of exchange between pounds and dollars was 1 pound is again ये exchange rate का question है, आप लोगों ने दोबारा से खुद attempt करना है, ठीक है। यहीं से आपका question solve होना start होगा। 1 pound align $2.8। अब हमने निकालना क्या है, डॉलर्स निकालना है, पाउंड्स गिवन है, उसके नीचे पाउंड्स के नीचे उसकी वैल्यू, डॉलर्स के नीचे x और क्रॉस मल्टीप्लाई। x into 1 is x, 120 into 2.8 will give you the answer for x। Similarly again same question same values, मतलब आपने इसको उस हिसाब से वैल्यूज प्लेस करनी है। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टू सम रेशो क्वेश्चंस, आगे चलते हैं, रेशो से रिलेटेड क्वेश्चंस को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, a wooden plank is cut into 3 pieces in the ratio 2:5:1। The length of the longest piece is 125 centimeter। Find the length in centimeters of the shortest piece। ठीक है। अब हमें रेशो क्या गिवन है, 2:5:1 एंड द लॉन्गेस्ट पीस की जो ओरिजिनल लेंथ है वो 125 है, विच मींस दैट ये जो 3 हिस्से हैं इनमें से जो ये नंबर है 5, 5 इज रिप्रेजेंटिंग, यानी कि व्हाट इज द फ्रैक्शन, 5 आउट ऑफ 5 + 2 7 and +1 8, सो 5/8 इज रिप्रेजेंटिंग 125। ठीक है, इसको हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, जो 5 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 125, तो अब हमने शॉर्टेस्ट पीस निकालना है, तो शॉर्टेस्ट पीस का नंबर है 1, तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा होगा x। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x इज इक्वल टू 125, x इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 5, और हमारा आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस इज 25 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द टोटल लेंथ इन मीटर्स ऑफ द प्लैंक। टोटल लेंथ इन मीटर्स, तो अभी हम लोगों ने लॉन्गेस्ट पीस की लेंथ निकाली थी 125 गिवन थी, शॉर्टेस्ट पीस की हमने निकाल ली है, तो थर्ड पीस है जिसकी रेशो 2 है वो निकाल लेते हैं। तो इफ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस represented by the number 1 was 25, then the length of the piece represented by the number 2 will be double of it। 1 का डबल 2 होता है, तो 25 का डबल क्या हो जाएगा, 50, यानी कि जो नंबर 2 को जो लेंथ रिप्रेजेंट करी है वो 50 है। इन तीनों को ऐड अप करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जी 150 + 50, 200 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू गिव दिस आंसर इन मीटर्स, तो आपका आंसर हो जाएगा 2.0 मीटर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13, द रेशो ऑफ सैयद's एज टू हिज मदर्स एज इज 2:7। सैयद इज 14 years old, हाउ ओल्ड इज हिज मदर। तो रेशो आपको गिवन है, ठीक है, दिस इज 2 इज रिप्रेजेंटिंग सैयद's एज एंड 7 इज रिप्रेजेंटिंग हिज मदर्स एज। सिंपल, 2 is representing 14 years old and then 7 would be representing x। Again simply cross multiply, 2x is equal to 7 times 14 and 7 times 14 is equal to 70 plus 28 and that is equal to 98, तो x का आंसर आ जाएगा आपका 49 years old। ठीक है, अच्छा जी, पार्ट बी, the ratio of Fatma's age to her father's age is 3:8। The total of their ages is 66 years। How old is Fatma? ठीक है, तो आपने फाइंड आउट करना है फातिमा की एज एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर 3, and we've been given the total of their ages 63 and that total is being represented by 3 + 8 11, यानी कि 11 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 66 ईयर्स, तो फातिमा की एज क्या होगी, यानी कि 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 11x is equal to 3 times 66, x is equal to 3 times 66 divided by 11, 11 times 1, 11 times 6 and 3 times 6 is equal to 18, so the age of Fatima at that time is 18 years old। Is it clear, any confusions? Sir, we got 11 from 3 and 8, right? Yes। Okay, okay, huh. ठीक है, Sorry. 3 is the ratio of Fatma's age, 8 is the ratio of her father's age, तो दोनों की ऐड कर दे तो बनता है 11, एंड दोनों की जो ओरिजिनल ऐड करके सम करके जो एज है, ओरिजिनल एज, दैट इज 66 years old। So the number 11 is representing 66, what will number 3 represent, ये हम लोगों ने। Okay, thank you.
Okay. Question 14. Easy question है ये, skip कर रहा हूँ मैं. Part B is still easy. Let's move on to the next question. Exchange rate ये आप लोग खुद कर सकते हैं. Question 15. Jane and Ken share some money in the ratio 5:3. Ken's share is $16 less than Jane's share. Find each person's share. ठीक है. हम यहाँ पे लिखते हैं Jane, यहाँ पे हम लिखते हैं Ken. If the share of Jane is X, then the share of Ken is $16 less than that. यानी कि X minus 15. ठीक है. ये हम दोनों की वैल्यूज आ गई. और इनके रेशियोज क्या है? जेन का रेशियो है 5 और कैन का रेशियो है 3. तो हम जेन की जो वैल्यू हमने निकाली है X, उसके आगे हम लिख देंगे 5, और कैन की जो वैल्यू हमने निकाली है X minus 15, उसके आगे हम लिख देंगे 3. अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. 3 times x is 3x is equal to 5 will be multiplied by x, 5x, and then 5 times 15 is 75. ठीक है. तो आपका 3x इधर ले आओ, 75 वहां ले जाओ, तो हो जाएगा 75 is equal to 2x. x is equal to 37.5. Now what is x? x is the share of Jane, which is equal to 37.5. और Ken का जो शेयर है वो उसमें से 15 लेस है, तो 37.5 minus 15 will give you 22.5. So the share of Ken is 22.5. तो ये आपके पास आंसर आ गया. अच्छा, हमारे क्वेश्चन में ना एक हमसे बेसिक एरर हो गया कि $16 लेस था और मैंने उसकी जगह यहाँ 15 लिखा हुआ है. तो आप लोगों ने इसको करेक्ट कर लेना है. इसको हम यहाँ पे 16 कर देना, जिसकी वजह से हमारे आंसर्स भी चेंज हो जाएंगे. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ x minus 15 दिस विल बी x minus 16. लेट्स मेक दिस 16. हाँ, तो ये आपका ऑटोमेटिकली इक्वेशन चेंज हो जाएगी. तो ये आपका हो जाएगा 3 times x is 3x, 5 times x is 5x, and 5 times 16 is equal to, यहाँ पे आपका आ जाएगा 80. सही है. तो वही सारा कुछ रहेगा, बस ये होगा कि 2x 80 के इक्वल आएगा इक्वेशन के एंड में, और x आपका 40 आएगा. So the share of Jane will be equal to 40 and the share of Ken will be equal to 40 minus 16, 24. ये आंसर. ठीक है. वो यहाँ पे हमने 15 लिख दिया था गलती से. Any confusion in this part A? Part, हाँ जी, क्लियर है. जी सर. मारिया, मारिया आपको समझ आ गई है? हाजरा. जी. गुड. मारिया आपको समझ आया? जी सर. Part B, the scale of a map is 1:25,000. The distance between two villages is 10 centimeter on the map. Find the actual distance in kilometers between the villages. ठीक है. अच्छा, एक उसूल आप लोगों ने याद रखना है. ये जब भी आपको मैप का स्केल मिलेगा ना, मैप का स्केल जब भी गिवन होता है उसमें यूनिट्स जब नहीं लिखे होते ना, जैसे इसमें यूनिट्स नहीं लिखे, जब लिखे होंगे तो मसला आसान है. लेकिन यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखे हुए, तो आपने अज्यूम करना होता है कि ये दोनों यूनिट्स सेम है. यानी कि अगर हम इस स्केल के हिसाब से हम 10 सेंटीमीटर निकालना चाहें, तो हम अगर यहाँ 10 लिखेंगे तो उस रेशो के हिसाब से जो हमारा आंसर आएगा वो सेंटीमीटर्स में ही होगा. अगर 1 is equal to 25,000, then 10 is equal to 25000 and another 0. तो ये सेंटीमीटर में हमारा आंसर है. ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ भी सेंटीमीटर डाला था. अब हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है इनटू किलोमीटर्स. तो 250,000 cm कन्वर्टेड टू किलोमीटर. तो आपको पता होना चाहिए कि जी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और फिर 1000 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, विच मीन्स कि इसमें 2 जीरोस और आ जाएंगे, 3 और 2 5. तो किलोमीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्जन मीन्स 1 एंड देन 1 2 3 4 5 जीरोस. तो अब आपने सेंटीमीटर से वापस किलोमीटर में जाना है, तो आपको इन 5 जीरोस को कम करना पड़ेगा. 1 2 3 4 जीरोस कट गए और डेसिमल इधर आ गया आपका पीछे, यानी कि 5 प्लेसेस, 1 2 3 4 and 5 places. So the answer is 2.5 kilometer. When 250,000 centimeter is 2.5 kilometer. Question number 16. ये भी इजी है. क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट बी करते हैं. Express the ratio 24 centimeter to 3 meter in its lowest terms. Give your answer in the form P ratio Q, where P and Q are integers. यानी कि डेसिमल में नहीं, आपने होल नंबर्स में आंसर देना है. दूसरा, यहाँ सेंटीमीटर है या मीटर है, दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए. तो आपने पहले
24 सेंटीमीटर है तो 3 मीटर को भी सेंटीमीटर में लिख लें तो वो 300 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, जब दोनों के यूनिट सेम हो जाते हैं तो फिर यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 टाइम्स 8, 3 टाइम्स 100। अब 2 4 से डिवाइड करते हैं, 4 टाइम्स 2 एंड 4 टाइम्स 25। नाउ अब फर्दर डिवाइड करेंगे तो डेसिमल हो जाएगा, इसलिए अब हमारा यही आंसर है 2:25। Question number 17. A bag contains red and blue pens in the ratio 2:7. There are 18 red pens in the bag. How many blue pens are in the bag? So the bag contains red and blue pens. तो ये red का रेशियो है 2 और blue का रेशियो है 7। और बैग में उसने बता दिया कि जी रेड पेन्स 18 है। तो ये 2 वाला जो नंबर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 18 को। तो ये जो 7 वाला नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? x को। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपका आंसर आ जाएगा जी 2x इज इक्वल टू 18 टाइम्स 7। x इज इक्वल टू 18 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाय 2। 2 ones are 2, 2 nines are 18, 9 times 7 is equal to 63. So there are 63 blue pens in the bag. और अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि हाउ मेनी बैग पेन्स आर इन टोटल, टोटल फाइंड आउट करें, तो हम 18 और 63 ऐड करते, हमारा आंसर आ जाता 81। A box contains apples and oranges. The ratio of apples to oranges is 2:3। तो ये एप्पल है और ये ऑरेंजेस है। ठीक है, what percentage of the fruit are oranges? of the fruit का मतलब टोटल का क्या परसेंटेज है ऑरेंजेस। तो ऑरेंजेस का नंबर है 3 और टोटल का नंबर है 2 + 3 5। तो 3/5 को आपने परसेंटेज में लिखना है, तो 3/5 टाइम्स 100 इज इक्वल टू 5 ones are 5, 5 20s are 100, 3 times 20 is 60%। तो 60% ऑफ द टोटल ऑल फ्रूट्स इज ऑरेंजेस। सही है, ठीक हो गया। 2 एप्पल थे, 3 ऑरेंजेस थे, दोनों को प्लस किया तो हमें पता चल गया 5 हैं टोटल फ्रूट्स, उनमें से 3 ऑरेंजेस है, तो 3/5 एज अ परसेंटेज, तो टाइम्स 100। क्वेश्चन नंबर 18, ये आज का आखिरी सवाल है। The ratio of boys to girls in the class is 4:5. What fraction of the class are boys? ठीक है, तो what fraction of the class, which means what fraction of the class means total, टोटल का बताना है फ्रैक्शन किसका? बॉयज का। तो बॉयज का रेशियो है 4/9। 4 + 5 is 9, तो 4/9 सिंपल। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:4, यानी कि बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं। देयर आर 120 मोर गर्ल्स देन बॉयज। जब भी ये मोर या लेस वाला क्वेश्चन है तो आपने वो एक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, तो अगर बॉयज हमारे इसमें एक्स हैं तो गर्ल्स जो हैं वो हैं 120 मोर देन बॉयज, तो यानी कि 120 प्लस एक्स। एंड बॉयज का जो नंबर है दैट इज 3, तो एक्स के आगे हम 3 लिख देंगे और 120 प्लस एक्स के आगे हम 4 लिख देंगे और इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 times x is 4x is equal to 3 times 120 is 360 plus 3x। 3x वहां जाके माइनस हो जाएगा, x is equal to 360 हमारा आंसर आ जाएगा। So the number of boys in the school are 360 and the number of girls in the school are 120 more than that. So 120 plus 360 would be equal to 480 and the total number of students in the school are 360 plus 480 और आपका आंसर आ जाएगा 840। 0 14 4 + 4 8। बच्चों, रेशो का कॉन्सेप्ट क्लियर है? एनी कंफ्यूजन इन द रेशो कॉन्सेप्ट? हाँ जी बच्चों, मिशाइल इज इट क्लियर? Yes, sir. मारिया, हाजरा? जी। ठीक है, गुड, शाबाश। अब हम जो है ना वो कल की क्लास में कुछ परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स करेंगे और बस फिर वील बी मूविंग ऑन टू द अलजेब्रा पार्ट। ठीक है, फिर हम लोगों ने अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ चीजें सीखनी है। बेसिक एक्सपेंशंस सीखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड सीखेंगे, उसके बाद we'll move on to graphs of quadratic equations and linear equations। ठीक है, and then we'll move on to the coordinate geometry and the more important parts of math। ठीक है, कल एक दिन है हमारा परसेंटेज के क्वेश्चंस करने का। मे बी आई बी टेकिंग अ टेस्ट आफ्टर दैट फॉर ऑल द टॉपिक्स कवर्ड टिल नाउ। इसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वर्कशीट के, हाफ ऑफ देम आर डन, हाफ ऑफ देम आर रिमेनिंग, तो वो आप लोगों ने कंप्लीट करने। आई बी शेयरिंग दिस इन द ग्रुप। अल्लाह हाफिज।